Hello everyone, welcome to NK Law classes. This is our part 2, second lecture of legal aptitude, law of torts. And in this lecture, we are going to cover two very important primary basic maxims of the law of torts. If you want to understand the law of torts, without understanding these two maxims, you can't go ahead in the law of torts. So we'll see what is that. See, now in the last lecture, we have covered the definition of the torts in which we were talking about the legal rights. That tort is what? It's a violation or infringement of the legal right. तो उसके basis पे there are two maxims. Maxims हमेशा most of the time Latin language में रहते हैं, which with the correct spelling you people need to by heart. Over a period of time, it would be very easier for you to remember all this. Okay. So the first one is injuria sine damnum. Second is damnum sine injuria. उसका लिटरली इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? इंजुरिया मीन्स इंजरी. इंजरी किसको हो रही है? आपकी लीगल राइट को हो रही है. तो देयर इज सम इंजरी दैट इज डैमेज, मतलब आपको लॉस हो रहा है, कुछ आपके लीगल राइट का लॉस हो रहा है, इंजरी. सीन मीन्स विदाउट, डैमनम मतलब डैमेज. अभी इसका मतलब क्या हुआ है? आपकी लीगल राइट को इंजरी हुआ है, लेकिन आपको एक्चुअली कुछ लॉस नहीं हुआ है, मतलब आपको फिजिकल लॉस, मेंटल लॉस, फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है. Still some of your legal right has been violated. अभी उसका उल्टा सेकंड मैक्सिम क्या बोलता है? Damnum sine injuria, which means there is a damage to you. आपको लॉस हुआ है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, कुछ भी लॉस, बट विदाउट एनी इंजरी टू योर लीगल राइट. आपकी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है. समझा? तो अभी ये कैसे होगा पॉसिबल? So we'll have to analyze this with the help of two case studies. The first one, injuria sine damnum. The very famous and the classical case law is that of Ashby versus White. First, I'll narrate you the facts of the case, and then I'll tell you कि ये maximus में कैसे work करता है. See the plaintiff over here. You people understand what is plaintiff and defendant? Plaintiff मतलब the person who has filed petition in the court because उसके साथ कुछ गलत हुआ है. Who wants justice? Defendant मतलब जिसके against case file हुआ है वो. So the plaintiff was a qualified voter at a parliamentary election. कुछ election हो रहा था पार्लियामेंट का. plaintiff जो था he was a voter. Okay, उसको वोट करने जाना था. And he was a qualified voter. मतलब क्या है कि he was qualified, मतलब legally उसका नाम वोट electoral roll पे था. Defendant was a returning officer in election. मतलब बूथ ऑफिसर वगैरह होते हैं ना, आप में से कई जनों ने अभी वोटिंग के लिए गए रहेंगे, तो आपको पता रहता है कि इलेक्शन जहाँ पे भी वोटिंग होता है बहुत सारे ऑफिसर्स, स्टाफ वगैरह बैठे रहता है. So defendant was one such officer. He wrongfully refused to take a vote of the plaintiff. Plaintiff वोट करने के लिए गया, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाया, देखो ये इलेक्टोरल रोल में मेरा नाम अपीयर भी करता है. फिर भी प्लेंटिफ ने, डिफेंडेंट ने मना कर दिया, आई विल नॉट अलाउ यू टू वोट. अभी प्लेंटिफ को उसने वोट करने के लिए अलाउ ही नहीं किया. इस केस में क्या हुआ? डिड प्लेंटिफ सफर एनी लॉस? एक्चुअली स्पीकिंग नो लॉस. He did suffer by such wrongful act of the defendant. Defendant का एक्ट तो wrongful ही था, wrongfully उसे वोट करने नहीं दिया, लेकिन plaintiff को कुछ लॉस नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुआ था. एंड इवेंचुअली द कैंडिडेट जिसको plaintiff को वोट करना था ना, वही बंदा जीत के आ गया. तो डिफेंडेंट ने बोला कि इस केस में भैया तुझे लॉस किधर हुआ है? देयर इज नो डैमेज हैपन टू यू. प्लेंटिफ ने एक ही बात बोली कोर्ट में, मेरे लीगल राइट का वायलेशन हुआ है. राइट टू वोट इज वेरी मच माय लीगल राइट व्हिच हैज बीन इंजर्ड. तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला इस केस में, so in this case court said कि सॉरी बाबा डिफेंडेंट को, ऑल्दो प्लेंटिफ को कुछ भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, still there is some kind of loss, मतलब injury to his legal right, and that is why you have to pay compensation. अभी compensation का amount कोर्ट ने कितना डिसाइड किया? It's not material. What is material? Court said that कि in spite of there being no damage, loss to the plaintiff, his legal right was violated. That's why he should get the compensation. तो ये हो गया आपका इंजुरिया सीन डेमनम वाला केस या तो साइन डेमनम वाला केस. ऐसे ही कुछ केसेस इंडिया में भी हुए हैं कि जहाँ पे लोगों को इन स्पाइट ऑफ देयर नेम बीइंग देयर ऑन द इलेक्टोरल रोल, दे वर नॉट अलाउड टू वोट, एंड इट वाज हेल्ड कि यस इन लोग का लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, इनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए. नाउ विल गो फॉर द अनदर क्लासिकल केस
विच इज डेमनम साइन इंजूरिया, मतलब जहाँ पे लॉस हो रही है एक्चुअली, लेकिन फिर भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है ना, तो प्लेंटिफ को कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलने वाला है। अब इसका क्लासिकल केस इज ग्लूसिस्टर ग्रामर स्कूल। टॉट्स में मोस्ट ऑफ द केसेस विल फाइंड वुड बी द क्लासिकल इंग्लिश केस लॉस, क्योंकि हम लोग ने इंडिया में पूरा लॉ ऑफ टॉट्स का कॉन्सेप्ट है लाइक ऑल दी अदर लॉज इंग्लिश सिस्टम से ही बोरो किया हुआ है, तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस वुड बी इंग्लिश केस लॉ। अब यहाँ पे जो डिपेंडेंट था ना, ही वाज अ स्कूल मास्टर इन द प्लेंटिफ स्कूल। प्लेंटिफ बोले तो ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का एक स्कूल मास्टर था। उसने क्या किया, खुद का स्कूल शुरू कर दिया इन द नियर बाय एरिया ओनली। अभी उसने क्या किया, he was actually very famous sir in the school and he kept his fee also very less। मतलब 40 पेंस का जो फीस था वो उसे 12 पेंस कर दिया। तो एक तो फेमस था, प्लस फी में इतना रिडक्शन, प्लस उसी एरिया में उसने स्कूल खोला। तो बट ऑफ कोर्स उसका जो फेथफुल क्राउड था, जिन लोग को वो पसंद था मास्टर, स्कूल मास्टर, सब बच्चे वहां पे चले गए। इसकी वजह से जो प्लेंटिफ का ओरिजिनल स्कूल था ना, उसको बहुत सारे मॉनेटरी लॉसेस हो गए, क्योंकि बच्चे ही कम हो गए, फीस ही नहीं आएगी तो स्कूल का खर्चा कहाँ से निकालेगा। उसको फाइनेंशियल लॉस हुआ, दैट इज डैमेज हुआ। बट यहाँ पे देयर वाज नो वायलेशन ऑफ द लीगल राइट, क्योंकि जिसको जो भी करना है, एनी पर्सन whoever wants to do any other new business trade, वो तो वो कर सकता है। तो कंपटीशन तो हमेशा रहेगी ही, तो उसकी वजह से यू कैन नॉट से मेरे लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। कि आप लोग ने आपके एरिया में ऑब्जर्व किया रहेगा, कोई एक नया रेस्टोरेंट वाला आता है, इफ ही बिकम्स वेरी फेमस, और सम नाइस फूड जॉइंट वाला, ही बिकम्स वेरी फेमस, अच्छा खासा अर्न करना चालू करता है, तो तुरंत दूसरे फूड जॉइंट वाले या तो रेस्टोरेंट वाले आसपास में खोल देते हैं, जिसकी वजह से जो बंदा सबसे पहले आ रहा है उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट होता ही है। बट कैन ही डू एनीथिंग? ही कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज देयर इज नो वायलेशन ऑफ हिज लीगल राइट। सिमिलरली आपने देखा रहेगा, सैलून या तो ब्यूटी पार्लर रहेगा, पहले एक बंदा खोलता है, उसका बहुत अच्छा खासा चलने लगता है, आज आसपास 3-4 और खुल जाते हैं। ऐसे किसी भी शॉप के लिए हो सकता है, किसी थिएटर के लिए, मॉल के लिए, कोचिंग क्लास के लिए, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे राइट टू फ्री ट्रेड तो रहता ही है। So there is no violation of the legal right. If there is no violation of the legal right, it means there is no injury. So this is a case of damnum sine injuria. It means आपको डैमेज हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, but you can't prove legal injury to your right. Hence court will say sorry, आपको भले ही लॉस हुआ है, you are not entitled to get any compensation, क्योंकि आपके साथ टॉर्ट हुआ ही नहीं है। पहले वाले केस में कैसा था, लॉस कुछ भी नहीं हुआ है आपको, फाइनेंशियल, फिजिकल वगैरह, फिर भी आपके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है ना, तो कोर्ट विल से यस आपके साथ टॉर्ट हुआ है, गलत हुआ है, और यहाँ पे कोर्ट विल से आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। So these are the two classical case laws of these two very important maxims. Guys, expect a minimum one question from these two maxims. Mostly हर साल ये दो maxims के ऊपर एक आधा question आया ही है। So with this, we will stop our part 2 and then we'll move for the part 3. Guys, please do visit our website www.nklawclasses.com and do subscribe to our NK Law Classes Mumbai YouTube channel as well.